Very good morning, everyone. In previous class, we have discussed about electromagnetic waves, the origin of electromagnetic waves, and displacement current. See, in previous class, we have discussed that displacement current is the undefined part of the Ampere circuital law when applied to capacitors in an electric circuit. All right. So we have seen that displacement current is so much important for explaining and consistency of the Ampere circuital law when any capacitor is placed. Means when there is discontinuity of the current, then it is not mean that it is the discontinuity of the Ampere circuital law. Ampere circuital law is always valid. So these are some properties of displacement current which we are going to discuss here. See, displacement current exists whenever there is a change of electric flux. Unlike conduction current, it does not exist under steady conditions. Means, as we have seen, between the plates of the capacitor, the displacement current was there, or we can say the consistency of Ampere circuital law was there because there is continuous change in electric flux between the plates of the capacitor, and that is why changing electric field was producing magnetic field there. Alright, so that is why closed integral B dot dl was non-zero, and it is same value as it is outside the capacitor in the electric circuit. Alright, so the displacement current is the phenomena where steady conditions are not followed, means there is some change, continuous change in electric field. Now second property, see, it is not a current, it only adds to current density. It is very important point that it is not actually any current. It is defined as current because it produces magnetic field. So here it is written as it produces magnetic field, so it is called a current. Means, as we know, the source which on changing generates magnetic field is called electric current, and that is why here we are saying this property as electric current. So it is only the current density which is adding up in Ampere circuital law. Alright, now third property, very important, the magnitude of displacement current is equal to the rate of displacement of charge from one capacitor plate to the other capacitor plate. Rate of displacement of charge. Alright, so whenever it is asked that what is displacement current magnitude, then you will say it is the rate of displacement of charge from one plate to another plate. Now this conduction current which is outside the capacitor in the electric circuit, and displacement current which is between the plates, alright, they both combine to form the continuity of the Ampere circuital law. Alright, and that is why we say that together with the conduction current, displacement current satisfies the property of continuity. I am again saying this word again and again that it makes Ampere circuital law consistent. ठीक है, तो कंटिन्यूटी को रिटेन रखता है, ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो या डेफिनेशन लिख रहे हो. यू मस्ट हैव टू राइट अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ एंड द चेंजेस मेड बाय द मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल. ऑल राइट, नेक्स्ट इज the origin of electromagnetic waves which is generated, or you can say properly explained by Maxwell. Glenn Maxwell in about 1860s or 65, Glenn Maxwell introduced the concept of generation of electromagnetic waves
and he has shown that the light, the other spectrum, that is visible spectrum is light, infrared spectrum, ultraviolet spectrum, X-rays, they all are nothing but the electromagnetic waves. So for explaining this phenomena, just because he has explained that he actually combined the laws given by other scientists also, like Faraday. Faraday said changing magnetic field produces electric field. Faraday law of induction says changing magnetic field produces electric field. All right, so he used Faraday's statement. Similarly, Gauss law in electrostatics. So Maxwell equations are the equations used by Glenn Maxwell to explain the electromagnetic waves. All right, so the Maxwell equations are the basis of electromagnetic wave formation. These equations combining these 4 इक्वेशंस आर देयर. यहाँ पे हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस पढ़ेंगे. ये असल में मैक्सवेल की इक्वेशंस नहीं हैं, ये अदर साइंटिस्ट की इक्वेशंस हैं जिनको कंबाइन करके मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन किया. तो यानी जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, तो हमें इन चारों मैक्सवेल इक्वेशंस का साथ में डिस्कशन ज़रूरी है. सो फर्स्ट एजम्पशन दैट वाज मेड टू सिंप्लीफाई द फिनोमेना, that assuming that no magnetic or dielectric material is present. सबसे शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी हमारे स्पेस में नहीं है, ऐसा मानते हुए. क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था, या फिर कह लें कि मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, ये मीडियम में भी चल सकती हैं. तो सबसे टफेस्ट पार्ट, क्योंकि वैक्यूम के लिए वैक्यूम में भी लाइट का चलना और मीडियम में भी लाइट का चलना दोनों ही सिमिलर तरीके का वो था, क्या कहते हैं, बिहेवियर था. लेकिन मटेरियल मीडियम के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाला बिहेवियर ये लाइट्स नहीं शो करती थी. और ये एकदम नया फिनोमेना था जिसको एक्सप्लेन करना था, दैट इज़ द ट्रेवल ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे तो कोई मीडियम होता नहीं है, तो हमने ये एजम्पशन बेसिक माना कि देयर इज़ नो मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट. अब हम इस पे अप्लाई करेंगे. मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है. अब हम कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज़ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट बाई मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. देखिए याद रखिएगा, एग्ज़ाम में या फिर जनरली आपसे फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन एंड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन यू विल बी आस्क्ड अबाउट दिस. तो इनका जो सीरियल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इनके नाम के साथ कंसिस्टेंट है. यानी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही बोलेंगे आप. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकी सीरीज़ आप आगे पीछे कर सकते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सी, as we know, Gauss law of electrostatics statement is this much: closed surface integral, or the surface integral about any closed surface is equals to the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. यही होता है. ठीक है. और we can say the electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ये भी एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा है ना. तो ये स्टेटमेंट गॉस लॉ का स्टेटमेंट है जो उन्होंने फर्स्ट इसकी तरह, क्या कहते हैं, सोर्स की तरह यूज़ किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए. ठीक है. अब देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये जो हमें पहले से पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है. क्या है गॉस लॉ का एक कॉन्सिक्वेंस? द चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर. अगर एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, मान लीजिए एक गोला है जो अंदर से खोखला, या तो फिर हम कहते हैं ठोस गोला ही था, कोई स्फीयर था, एंड वी हैव गिवन सम चार्ज. आपने 8th क्लास से ये चीज़ पढ़ी है कि जब हम किसी ठोस गोले को, स्फीयर को, मेटालिक स्फीयर या आयरन स्फीयर या कोई भी ऐसा, आप जब चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है? उसके सरफेस पे आ जाता है. ठीक है. तो ये गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉन्सिक्वेंस है. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट एक और कॉन्सिक्वेंस है, मैं उसको भी लिख देता हूँ. ये है
the electrostatic force between the two charges is always proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है। अब देखिए इस पूरे इन दोनों को ही हम कॉन्जिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। सेकंड वाले को तो आप पहचान रहे होंगे, इट इज़ नथिंग बट द कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का ही एक पार्ट है वो, और ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक और अब हम जो सेकंड लॉ पढ़ेंगे वो क्या है उसको देखते हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस क्लासेस। ये गॉस लॉ को अप्लाई करता है मैग्नेटिज्म में। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा कि क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड ये होती है। ठीक है, लेकिन सिमिलरली जब हम मैग्नेटिज्म में बात करते हैं तब जो गॉस लॉ अप्लाई होता है वहाँ पे ये कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो जो ज़ीरो होगी किसी क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं। दी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is always ज़ीरो। अब देखिए जब मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ाया था मैग्नेटिज्म में, तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है। देखिए क्लोज सरफेस हम इतना छोटा भी बना सकते हैं, हम अपने अर्थ के बराबर भी बना सकते हैं। अर्थ भी हमारा एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के बराबर अगर हमने क्लोज सरफेस लिया तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था, सिग्निफिकेंस था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का, दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। यही तो था, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप इस बात को समझिए, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स अगर मान लीजिए किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई एक ऐसा सोर्स होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जहाँ से फील्ड लाइन निकलती, तब हम कहते कि वो इंडिविजुअल सोर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सोर्स है प्रेजेंट, लेकिन हमारा जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है इट इज सेइंग दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो कब हो सकता है, जब जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं या फ्लक्स आ रही हैं उतनी फ्लक्स जा रही हैं। ठीक है ना, उस सरफेस के बाहर। सो देयर विल नॉट बी एनी इंडिविजुअल सिंगल मोनोपोल, यानी मोनो मतलब हो गया जिसका पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा ना हो कि एक जगह से फील्ड लाइन निकल रही है दूसरे में जा रही है। लेकिन हमने तो पढ़ा है ना कि फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का स्टेटमेंट है, हमारे कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा एक बेसिस था जो मैक्सवेल ने इस्तेमाल किया। यानी फर्स्ट क्या हो गया, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यानी एक ने बात कही कि फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इट इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो फॉर एनी क्लोज सरफेस। तो ये दो बात तो हो गई। नाउ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस, लेट्स सी क्या है थर्ड इक्वेशन। देखिए मैं नाम मैक्सवेल इक्वेशंस कह रहा हूँ पर इसे दिया किसी अन्य साइंटिस्ट ने है, तो ये याद रखिएगा मैक्सवेल इक्वेशंस कुछ और नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लॉज हैं।
ठीक है ना, और सभी का सीरियल याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ थर्ड वन इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वो तो दो लॉज हो गए जो एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन और एग्जिस्टेंस ऑफ दी चार्जेस और दी सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये हम बात करेंगे कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कैसे परिवर्तन होता है। पहले तो हमने दोनों फील्ड्स की बात करी है ना, पहले दो लॉज में। अब इन दो लॉज में जो आने वाले दो लॉज हैं इसमें हम पढ़ेंगे दो फील्ड्स का एक दूसरे में इंटरचेंज, एक्सचेंज। ठीक है, सो फर्स्ट थर्ड लॉ इज, और वी कैन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ये क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट दी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। देखिए क्या थी, ये तो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, मैंने 10 बार कहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, सो व्हाट वाज दैट? दिस क्लोज्ड इंटीग्रल E dot dl for any closed surface, it is equals to minus d phi by dt। ठीक है ना, ये phi b है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is changing with time, all right, एंड माइनस साइन इज फॉर डिनोशन ऑफ लेंज लॉ, अगर आपको याद हो तो। और ये क्या पैदा कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है इसका एग्जाम्पल? कहाँ पे होता है इसका एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम एक कॉइल लेते थे रेक्टेंगुलर और उसको मैग्नेटिक फील्ड में जल्दी जल्दी रोटेट कराते थे, तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होती थी और हम उसका इस्तेमाल जनरेटर के तौर पे करते थे, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते थे। ठीक है, सो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट सेज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं इसको? हम एक स्टेटमेंट और कहा करते थे, द रेट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। यही तो कहते थे ना इलेक्ट्रिक जनरेटर में, है ना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the closed circuit is equals to the rate of change of magnetic flux linked with that closed circuit। ठीक है, so this is the expression। now we can write it using, अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे एक हमारा गॉस थ्योरम होता है, उससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्लोज लाइन इंटीग्रल है, उसको हम ये ग्रीन्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। केवल देखिए आप इसको, अभी आप चूंकि समझे नहीं है, अभी इस पर्टिकुलर लॉ को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि देखिए यहाँ लाइन इंटीग्रल ई है ना, अगर हम इस लाइन इंटीग्रल को हटाएंगे तो इधर वाले में सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी हम लिख सकते हैं, है ना। फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है ना, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। और एरिया को है वो टोटल जोड़ने के लिए सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल करने वाले हैं, या इस फाई को, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को बी के फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है ना, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है बी डॉट ए टाइप का, लेकिन यहाँ ए की जगह, चूंकि ये कांस्टेंट ए तो है नहीं, हम किसी बड़े सरफेस को एड अप करेंगे इस एरिया को, तो हम उसके लिए सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। यानी फाई को किससे चेंज कर रहे हैं? बी से। फाई की जगह क्या लेके आना चाहते हैं हम? बी लेके आना चाहते हैं, ताकि साफ साफ नज़र आने लगे। मान लीजिए अगर किसी को नहीं पता कि फाई क्या है, लेकिन उसको ये पता है कि बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको कह रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसको तो नज़र नहीं आ रहा है दैट दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड,
है ना, तो यहाँ पे हम B रख दें तो वो नज़र आने लगेगा। दैट इज़ वाई आई एम चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसलिए मैं इसको ऐसा कर्ल टाइप का बना रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये d बाई डी टी यहीं रहेगा, माइनस साइन यहीं रहेगा, d बाई डी टी और माइनस साइन यही रहा। इस फाई को मुझे B डॉट ए टाइप बनाना है, B डॉट ए टाइप बनाना है, ठीक है। तो जब लाइन इंटीग्रल इधर से हटता है ना, तो इधर सरफेस इंटीग्रल लगता है, ठीक है। बाद में हम एक इक्वेशन एक वो पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, तो वो 12th में आप लोग मैथमेटिक्स में हो सकता है पढ़ें भी, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लगता है, तो हमने क्या किया, d बाई डी टी तो यही रखा, फाई को किस फॉर्म में रखा, B डॉट ए, लेकिन B डॉट ए नहीं, A चूँकि ये कांस्टेंट एरिया है, लेकिन यहाँ तो एरिया पूरे सरफेस, एक बड़े सरफेस के लिए इंटीग्रेट करके निकलेगा, तो B डॉट डी एस निकाला, एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया तो ये छोटे से एरिया के लिए हो गया, एलिमेंट के लिए, और इसको इंटीग्रेट कर दिया क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो ये क्या बन गया, B डॉट ए टाइप का बन गया, ठीक है। तो ये जो माइनस डी बाई डी टी ऑफ B डॉट डी एस, अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नज़र आने लगा B, एंड हियर इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हम कह सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड d बाई डी टी है ना, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो गई। इसका मतलब पहली चीज़ हमने बात करी, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन दैट इज़ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये इंडिविजुअल फील्ड्स की बात कर रहा था। थर्ड इक्वेशन जो आती है, इट इज़ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थर्ड हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। सी, ये जो है ये हमने सबसे बाद में अभी हाल फिलहाल में डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते वक्त पढ़ी थी। मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या तो फिर कह सकते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ा था, देखिए मैक्सवेल ने ये कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से किया। एम्पियर सर्किटल लॉ की डिसकंटिन्यूटी को जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में पैदा हो रही थी, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, वो यहाँ पे उस कमी को उन्होंने दूर किया। कैसे किया था, वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ में लिख दूँ, फॉर एनी क्लोज्ड सर्किट C, क्लोज सर्किट C, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट डी एल, ये ध्यान दीजिएगा लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड इंटीग्रल C क्लोज्ड इंटीग्रल को शो कर रहा है, और dl क्या शो कर रहा है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को। सो इट इज एक्चुअली द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये कब होता था, जब I हमारे सर्किट में बहती थी और वहाँ कैपेसिटर जैसी चीज़ नहीं होती थी, तो वहाँ पे इस करंट को क्या कहते थे, कंडक्शन करंट होती थी ना, तो IC। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, when we are having some capacitor in our circuit, then there is discontinuity in this ampere circuital law, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट के बीच में गैप आ गया और वहाँ कोई भी करंट नहीं है, वहाँ करंट नहीं है, तो वहाँ पे और ये मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये है कैपेसिटर प्लेट्स, है ना, यहाँ से बैटरी से करंट चली, है ना, और आपने कभी देखा है क्या कि यहाँ पे, इसको हटा दें, यहाँ से करंट ऐसे मूव करते हुए गई, और आप यहाँ पे ये भी बना देते हैं, मान लीजिए करंट आई गई, IC कंडक्शन करंट, जो सर्किट के बाहर बहती है उसको कौन सी करंट कहते हैं, कंडक्शन करंट, और IC यहाँ बनाते हैं। हम लोग हमेशा इसके बीच में भूल जाते हैं और इसके बीच में क्या बनाते हैं, चार्जेस बनाते हैं, यही बनाते हैं ना, उल्टा बन गया क्या, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर एक्चुअली निगेटिव चार्ज कैरियर्स एकोमोडेट हो रहे हैं, यानी यहाँ पॉजिटिविटी आएगी, नहीं पॉजिटिव चार्ज कैरियर तो इधर आ गए तो यहाँ निगेटिविटी आएगी, और निगेटिव चार्ज कैरियर इधर आ गए यहाँ पॉजिटिविटी आएगी, सही है। तो देखिए यहाँ पे
ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ बीच में कोई करंट नहीं थी, तो और इसी जगह पे ये फेल कर जा रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं समझा पा रहा है कि ये बीच में तो गैप है। अगर हम एक क्लोज सरफेस यहाँ ले लें तो एम्पियर सर्किटल लॉ इस बीच वाले क्लोज सरफेस के लिए फॉलो नहीं कर रहा था। और इसी डिसकंटिन्यूटी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। याद रखिएगा, डी फाई ई बाई डी टी। फाई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेयर बिटवीन द प्लेट्स। मैंने आपको बताया कि प्लेट्स के बीच में लगातार इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करती रहती है। ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल एम्पियर लॉ or modified form of Ampere's law. What is modification? This is the required modification. And where is current? So I have told you this part. म्यू नॉट के बाद वाला जो है वो करंट है, यहाँ पे ये भी करंट है, तो ये म्यू नॉट आई है, तो ये भी म्यू नॉट आई टाइप होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड करंट विच इज फ्लोइंग हियर। लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ये कोई एक्चुअल करंट नहीं है, इट इज एक्चुअली द करंट डेंसिटी कंट्रीब्यूटिंग इन दिस सर्किट। ठीक है, लेकिन चूंकि करंट की वैल्यूज़ में है, करंट की यूनिट्स में है और करंट का बिहेवियर शो कर रही है। कैसे बिहेवियर शो कर रही है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, इसलिए ये करंट का ही फॉर्म है। और इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट करते हैं, यानी आई डी कहते हैं। और ये किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। ऑल राइट, सो दिस यू कैन सी that this is actually the four Maxwell equations। यहाँ ये फोर्थ वाला क्या बता रहा है? अब ये ध्यान दीजिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाली सर्किट में करंट के केवल बहने से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लेकिन अंदर वाली सर्किट में करंट के बहने नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने से, डी बाई डी टी देखिए चेंज होने से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। यानी ये वाला जो पोर्शन है, जब हम बाहर वाले सर्किट की बात करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जब हम अंदर वाले सर्किट की बात करेंगे, कैपेसिटर के अंदर करंट की बात करेंगे, तो कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगी, बिकॉज आउटसाइड द कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो, आई डी इज जीरो। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आउटसाइड द कैपेसिटर ID is 0, inside the capacitor plate or between the capacitor plates कंडक्शन करंट इज 0, क्योंकि वहाँ तो कोई कंडक्शन करंट है ही नहीं। लेकिन ये बार बार कैपेसिटर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये वही है, बीच में वैक्यूम था और चार्ज इधर से इधर ट्रांसफ़र हुए। इसका मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, कोई ऐसी वेव फॉर्म में एनर्जी थी जो इधर से इधर गई, है ना। तो हर्ट्ज़, जब हम हर्ट्ज़ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, देन वी विल सी कि कैसे एक वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है इसके थ्रू, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। All right, so these are four Maxwell equations which are the basis for electromagnetic waves. So in next class we will talk about some further topics like what were the predictions made by Maxwell and what are the properties, sources and other things related to electromagnetic waves, and then we will come to Hertz experiment. All right, thank you.